Good morning. Welcome to my class again. So section formula we were discussing and the exercise we were having, that is 7.2. So section formula, the concept is just to find a ratio from the coordinates, or a ratio will be given, you need to find the coordinate of the point of the division. So first two problems we did yesterday, that is based on, that means ratio was given and we got that coordinate of the point of division in the first question. And in the second question, the question was the points of trisection. That means the points of trisection means we got 2 points, and both the 2 points we have to find the coordinates of the both the 2 points. How? For the first point the ratio is 1:2, and for the second point, that is Q, yesterday we did, that ratio was 2.1. So today we will get that another set of problems, that is ratio. We need to find the ratio if the coordinates will be given. In the first two problems we are given the ratio and we got that coordinate. That means we are asked to find the coordinate. Now coordinates will be given, you need to find the ratio. So question number 4, 7.2, exercise 7.2, question number 4. See, first we have to understand the question. Question will find the ratio. That means we are asked to find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6. बोला कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट्स. बोले ये दो पॉइंट्स दो दे रखा, हमारे को दे रखा कि -3, 10 पॉइंट और 6, -8. 6, -8 पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन को कौन सा पॉइंट ने डिवाइड किया? -1, 6. This is the question. The question is given, find the ratio. बोले वो रेशियो निकालो in which, जहां पे the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8. बोला कि वो रेशियो निकालो जहां पे ये दोनों पॉइंट जोड़ने वाला लाइन को -1, 6 ने डिवाइड करता है. Got it? तो फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, इन द फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन हमको क्या दिया था? दिस x1 x2 दे रखा था एंड दिस रेशियो दे रखा था ना आपको. वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट. P वाज दिस पॉइंट, वी सपोज दिस पॉइंट एज P, द पॉइंट ऑफ डिवीजन वी डिनोटेड दैट पॉइंट ऑफ डिवीजन एज P. नो प्रॉब्लम. तो इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिए थे, x पर y पर निकाल लिए थे फॉर्मूला से, है ना. दैट इज द सेक्शन फॉर्मूला. और मैं आपको शुरुआत में बता दिया था कि इन सेक्शन फॉर्मूला वी विल गेट टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. वन, the ratio will be given, you need to find the coordinates of the point. That is how that section formula can be applied. And second point, in the second set of problems, you need to find the ratio if the coordinates is given. So this is that type of question. So see, question बोल रखा कि find the ratio निकालो जहां पे ये दोनों पॉइंट्स -3, 10 और 6, -8 जोड़ने वाला लाइन को ये डिवाइड करता, -1, 6 डिवाइड करता. दैट मींस यू नीड टू फाइंड दिस रेशियो. गॉट इट? तो लेट द रेशियो भी देखो, हमेशा हमने जो रेशियो किया हो सेक्शन फॉर्मूला में, तो m रेशियो n किया था ना हमेशा. ऑलवेज वी मेंशन दैट रेशियो m is to n. दिस इज रेड एज m is to n. तो वो इधर भी हमने दो तरीका अप्लाई नहीं करूंगा. आपका किताब में k is to 1 दे रखा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट मेरा एक बार ये देख लो, मैं m is to n माना था ना आपको सेक्शन फॉर्मूला में. while to find the coordinates of that point of division, we assume that ratio is m is to n. In this problem also we will not apply two methods, the same methods we will apply. That means let the ratio be m is to n. First it was given, now it is not given, so let the ratio be m is to n. Good.
this type of problem in your book, it is given like a k:1. That is also easy, but you please see this one. Why? Because why I am not opting for that method? Why? Because that first set of problem you have to assume m:n. In the second set of problem you have to assume k:1. So two methods I don't like. I like that method which is universal. That means by that method you can solve all type of problems. That is why this m:n I have assumed. Got it? So if this division is m:n, then you can apply the section formula here. How? X part is, this point ka X part is, if a point is dividing a line segment in the ratio m:n, then the X part of the point of division is given by mx2 plus nx1 by m plus n. So X part of the division this is -1, so it is given by m into what is x2? 6 plus what is n and n. Why? Because we have assumed this भाग as m, this भाग as n. तो m के जगह पे m ही पुट कर दिया, x2 के जगह पे 6 पुट कर दिया, n के जगह पे n ही पुट कर दिया, x1 के जगह पे -3 पुट कर दूंगा by m plus n. कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड दिस पार्ट x पार्ट इस पॉइंट ऑफ डिवीजन का एक्सपर्ट कितना है दे रखा अभी को, तो पहले तो निकालते थे, तो -1 दे रखा, तो -1 इक्वल टू m प्लस n इक्वल टू 6m माइनस 3n. कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं. समझ गए? तो ये तो था हमारा एक्सपर्ट निकाल लिया. ठीक है, अब आपको मैं दिखा देता हूं, इसमें ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप और दिखा देता हूं कि वाई पार्ट क्यों ना निकाला सर, एक्सपर्ट ने क्यों कर दिया. वाई पार्ट निकाल लो. वाई पार्ट क्या है जी इसका फॉर्मूला? my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n. वाई पार्ट कितना है इस पॉइंट का? 6. पहले नहीं देता था तो उसमें निकाल लेते हम. राइट नाउ वी आर गिवन, द रेशियो इज नॉट गिवन. फर्स्ट टाइम m दे रखा था, n दे रखा था, ये निकाल लेते थे. अब mn नहीं पता, ये दे रखा है. तो 6 इक्वल टू m कितना है, m के जगह पे m, y2 कितना है जी -8, n इंटू y1 कितना है जी 10 डिवाइडेड बाई, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ये हमारा आ गया y पार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब इसको सॉल्व करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये क्या आ जाएंगे -m माइनस n. m के साथ -1 को करूंगा मल्टीप्लाई, n के साथ -1 को करूंगा, तो दिस विल बी सेम एज इट इज, उस साइड में ही रहेगा. गुड. तो सी इफ दिस 6m will come to this side. Why? Because we will transpose the m side to left hand side and transpose that n single n to one side में लेफ्ट करूँ m करूंगा, वन साइड में n करूंगा. तो 6m को इस तरफ ले आऊंगा तो -6m हो जाएंगे. ऑलरेडी एक m था, -m था, तो इट वुड बी -7m. गॉट इट? और ये -n था, उस तरफ जाके +n हो जाएगा, तो -3n प्लस n मिलके -2n. तो ये माइनस माइनस कैंसिल. तो हमारा रह गया 7m इक्वल टू 2n. कोई दिक्कत नहीं, हमको रेशियो निकालना है. इधर भी कर दो एक बार. 6m प्लस 6n इक्वल टू -8m प्लस 10n. अरे ये -8 इंटू m इंटू -8m, ये इक्वल साइन है. तो इसको 8m को इस तरफ ले आऊंगा, ये -8m प्लस 8m हो जाएगा. 6m प्लस 8m इक्वल टू 14m इट विल बी. एंड दिस 6n विल गो टू दैट साइड, दैट मींस इट वुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 10n. दैट वुड बी 6n को अगर माइनस करूंगा 10n से, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा ये, तो ये 4n रुकेगा. अच्छा, तो अब ये दोनों चीज आ गया हमारा कि एक्स पार्ट को निकालते समय सर ये आ गया, वाई पार्ट को ये. हमको रेशियो निकालना है. अच्छा एक बात देखो, रेशियो मींस m:n निकालना है. तो इसमें 7m इक्वल टू 2n, तो m/n कितना होगा जी? इफ 7m इक्वल टू 2n, m/n कितना होगा? हर कोई क्या करते हैं ये देखो, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. मेरे को पता है फ्रॉम द लास्ट 4 years all the students they are doing wrong here, so that is why I am reminding you. See 7m equal to 2n, m/n equal to हर कोई 7/2n करेगा, 7/2. 7m equal to 2n, हर कोई m/n क्या करेगा? 7/2. इट इज रॉन्ग. वाई?
वाई अब भी करोगे, मेरे को पता है 7m इक्वल टू 2n, m/n इक्वल टू 7/2. इट इज रॉन्ग. वाई? बिकॉज सी अगर ये 7 ऊपर रहेगा 2 नीचे रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, 2m आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, 7n आ रहा है. गुड. बट वी नीड 7m, दैट मीन्स m ऊपर है तो 7 नीचे होना पड़ेगा, 2 ऊपर होना पड़ेगा. Got it? Therefore, the ratio is, now you can apply the ratio m ratio n equal to 2 ratio 7. Similarly here 14m by, तो इसमें m by n कर लो, तो m by n करने का आपको तरीका दे दिया, 14/4 नहीं 4/14. Why? Because ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये m 14 के साथ m मल्टीप्लाई है, n के साथ 4 मल्टीप्लाई है, तो इट वुड बी, इसको 2 से काट सकते हैं, 2 और 7, तो m by n कितना आ जाएगा, 2/7. तो इसका इंप्लाइज m इज टू n इक्वल टू 2:7. दैट मीन्स ऐसे नहीं कि दोनों करो, ये दोनों का x पार्ट या y पार्ट का कोई एक पार्ट ले सकते हो आप, ओनली वन पार्ट यू नीड टू टेक. ये सारा मत करो. हियर ऑल्सो द रेशियो इज 2:7, हियर ऑल्सो द रेशियो इज 2:7. दैट मीन्स if the coordinates, if the x part and y part of a point of division is given, you need to find the ratio. Just take one part, assume that ratio, first assume that ratio as m is to n, and just take one part, you will get the ratio. That is how. If you take x part, the ratio is same 2:7. If you take y part also the same, ratio is 2:7. दोनों करने का जरूरत नहीं, सिर्फ एक पार्ट लो. लेकिन एक अलग क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें कौन सा एक डेफिनिट पार्ट लेना पड़ेगा, एब्सिसा पार्ट. हियर यू कैन टेक एब्सिसा पार्ट ऑल्सो और ऑर्डिनल पार्ट ऑल्सो टू फाइंड द रेशियो. बट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू टेक दिस पार्ट फॉर श्योर और दिस पार्ट फॉर श्योर. बोले ये क्यों, अभी तो आप बोल रहे हैं कि दोनों पार्ट में से कोई सा ले सकते हैं. मैं बोला दोनों पार्ट में से कोई सा ले सकते हो इफ दे आर स्पेसिफिकली गिवन. इसमें -1 6 अगर आपको ऐसे दे देगा कि x,6 ने कौन सा पॉइंट में, x,6 ने कौन सा पॉइंट में इसको कौन सा रेशियो में काटा है, देन यू हैव टू टेक y पार्ट ओनली. व्हाई? बिकॉज इस 2 वेरिएबल ऑलरेडी है हमारा m और n, उसी का रेशियो चाहिए. अब फिर x पार्ट को तो इसमें तो x ही करोगे, फिर -1 के जगह पे अभी -1 वाज स्पेसिफिकली गिवन, दैट इज व्हाई वी हैव पुट -1. x डाल देगा तो x ही पुट करना पड़ेगा. गॉट इट ना? तो जो भी गिवन होता है वो पुट करोगे. इसमें दोनों गिवन था, -1 6, इसमें x पार्ट भी गिवन था, y पार्ट भी गिवन था. दैट इज व्हाई हमने दोनों इसमें से कोई सा एक पुट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इजी. देखना, फाइंड द रेशियो, सेम रेशियो निकालना है, इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए पॉइंट इज 1, -5. दिस यू डू, ए पॉइंट इज गिवन एज, इसी क्वेश्चन को हो जाएगा. देखना, बोला कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए पॉइंट इज गिवन एज 1, -5 and B point is given as -4,5. B point is given as -4,5. This, ये दोनों पॉइंट जोड़ने वाला लाइन को find the ratio in which the line segment joining these two point is divided by x-axis. First question was find the ratio in which the लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स. पहला 2 पॉइंट अलग दिया था ना, कौन सा दिया था, -3,10 एंड 6,-, इट वाज डिवाइडेड बाय -1,6 दिया था. अब बोला है कि फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1,-5 एंड बी -4,5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस. अब पॉइंट ऑफ डिवीजन नहीं है, अब एक्सिस ऑफ डिवीजन कर दिया. बोला कि आपने वो रेशियो निकालो जो रेशियो पे ये दोनों पॉइंट जोड़ने वाला लाइन को एक्स एक्सिस ने काट करता है. सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, ऐसे थोड़ी ना होता है, एक्स एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल होता है. दैट मींस यू हैव टू टेक द लाइन एज, ऐसे ले लेंगे लाइन 1,-5 सपोज, और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है -4,5, और ये हमारा एक्स एक्सिस है. The point is, A point is given as 1, -5. This is -5. And B point is given as -4,5.
तो ये दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन को एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस ने कौन सा पॉइंट, एक्स एक्सिस ने कौन सा रेशियो में भाग करता है, यू नीड टू फाइंड दिस रेशियो। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट आपको पॉइंट ने काटा था तो यू नीड टू फाइंड अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ डिवीजन। आज क्या बोला आपको कि एक्सिस ने काटा, यू नीड टू फाइंड द रेशियो। आपको मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बोला था कि 9th में यू हैव गॉट वन कंसेप्ट, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, रिमेंबर दैट क्लास, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, आपको शुरुआत में लिखा था वो 9th का कंसेप्ट है, इज ऑफ द फॉर्म x, 0 एंड एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस ऑफ द फॉर्म 0, y, कि x एक्सिस का हर एक पॉइंट का, कोई सा पॉइंट का फॉर्म होगा x, 0, दैट मींस x एक्सिस में होने का मतलब y पर 0 है, and any point lying on the y axis would be of the form 0, y, that means here abscissa part would be 0, that is why that points are lying on the y axis। तो हमको क्वेश्चन बोला कि ये दोनों पॉइंट जोड़ने वाला लाइन को x एक्सिस ने कौन सा रेशियो पे काटा है, दिस इज द क्वेश्चन। इन हिंदी द क्वेश्चन इज कि ए बी को जोड़ने वाला लाइन को x एक्सिस ने कौन सा रेशियो पे काटा है, वी डोंट नो, सो वी विल एज्यूम दैट पॉइंट इज, सिंस इट इज गिवन कि x एक्सिस ने डिवाइड किया दैट लाइन को, तो x एक्सिस ने डिवाइड किया मींस दैट पॉइंट विल बी x, 0, दैट पॉइंट विल बी x, 0, x एक्सिस ने डिवाइड किया मींस y पर 0 होगा, why बिकॉज एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज गिवन बाय दिस फार्मूला x, 0, और आपको बोला कि इस लाइन को x एक्सिस ने डिवाइड किया, देयरफॉर let the point be x, 0, क्यों x, 0 बोला? अगर बोला कि इस लाइन को y एक्सिस ने कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा, तो अगर y एक्सिस दिया होता तो लेट द पॉइंट भी 0, y मान लेते। गुड, y एक्सिस वाला कर लेना आप घर पे एज ए होमवर्क, यू हैव टू डू टेक 2 पॉइंट्स एंड फाइंड द रेशियो इन व्हिच दैट 2 लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस। तो इन दैट यू हैव टू एज्यूम द पॉइंट भी 0, y। तो इसमें हमने मान लिया द पॉइंट इज x, 0। आपको रेशियो निकालना है, अगेन लेट करना पड़ेगा, लेट द रेशियो बी m इज टू n, ये m ले लिया, ये n ले लिया। तो इसमें मैं x पार्ट नहीं लूंगा, क्यों? वेरिएबल है, y पार्ट ले लूंगा। यू नीड टू फाइंड द रेशियो ना, जस्ट टेक y पार्ट, y part equal to m y2 plus n y1 by m plus n। इसका पहला वाला फॉर्मूला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इज सेम, ओनली डिफरेंस इज हियर बोथ द पार्ट वर गिवन, x पार्ट एंड y पार्ट। सो आपको दोनों तरफ से करके दिखाया था, दोनों करने का जरूरत नहीं, कोई सा एक ले लो, यू हैव टू टेक जस्ट वन, x पार्ट या y पार्ट, यू विल गेट द सेम रेशियो if both are given, specifically given, but here आपको x नहीं ले सकते, आपको रेशियो नहीं आएगा, that is why y पार्ट लेंगे। गॉट इट ना? आपको बोला कि पहले में दोनों ले सकते, अब में एक ले सकते, उसमें भी एक ही करना, आपको दो नहीं करना। तो इसमें बस y पार्ट इक्वल टू 0 इज गिवन, इक्वल टू m के जगह पे m पुट कर दो, y2 कितना है जी नहीं पता,